औषधियाँ बहुत ही अच्छी हैं, प्रभावकारी हैं। कैंसर का भी इलाज कैंसर का भी इलाज यहाँ होता है। Underneath the sky, painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams, caught in the spell of the cosmic night. सरकार का संग्रहालय उससे भी कहीं अनेक सामग्रियां ऐसी हैं जो वहाँ भी उपलब्ध नहीं होती। महाभारत काल के भी महाभारत कालीन भी यहाँ अवशेष, हथियार आदि रखे हैं। Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Us in the midnight glow where the stars align. We lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky, painted with dreams. जहाँ हम बैठे हैं, जिस जमी पे हम बैठे हैं, ये है झज्जर गुरुकुल, जो कि विश्वविख्यात है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ख्याति प्राप्त है। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो स्वयं गुरुकुल के आचार्य श्री विजयपाल जी। उन्हीं से जानेंगे कब गुरुकुल की स्थापना हुई, कितना पुराना गुरुकुल है और कितने बच्चे और क्या शिक्षा यहाँ दी जाती है। आचार्य जी, सबसे पहले तो चरण स्पर्श। क्या नाम है आपका? हर्ष। हर्ष करके दिखा चल। कितनी उम्र है? हर्ष को आप देख रहे हैं कितनी अच्छी से, और साथ में गुरुजी है, इनको बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। With dreams, we're chasing the echoes of silent screams, caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations, we'll find our way. Through the celestial symphony, we'll sway. With every step, we leave our cares behind. In this celestial ballroom, love's defined. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. The shimmering galaxies will find our way, guided by love's everlasting sway. With each celestial heartbeat, we dance on in this cosmic gate as we twirl in the magic of the cosmic light. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky, painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams, caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations, we find our way. Through the celestial symphony, we'll sway. With every step, we leave our cares behind. In the celestial ballroom, love's defined. Caught in the spell of the cosmic night, the fantasies bloom in the pale moonlight. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl
ये देखिए विद्यार्थियों के लिए अलग अलग स्लोगन बनाए गए हैं। विद्यार्थी ब्रह्मचारी रहे, ब्रह्मचारी और तप के द्वारा देव मृत्यु को जीत लिया। तो इस तरह के स्लोगन आपको यहाँ गुरुकुल में दिखाई देंगे। तस्वीरों में भोजन की तैयारी की जा रही है। क्या बनाया जा रहा है आज? घिया जी बना है। घिया। क्या क्या बनेगा आज? आज घिया बनेगा, की बनेगा घिया के साथ। घिया रोटी, और उसके साथ क्या होता है? खीर हलवा वाला? उसके साथ सलाद होता है आपके। अच्छा, सुबह 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 अलग होता है। सुबह क्या होता है? सुबह के नाश्ता में दलिया, कभी खीर, कभी पुलाव, अच्छा, ऐसा। रात को अलग होता है। दोपहर के डेली सलाद मिलता है, रोटी सब्जी चावल। कैमरे के आगे से आइटम फोटो नहीं आता। तो झज्जर का जो संग्रहालय है, पुरातत्व संग्रहालय जो झज्जर गुरुकुल में मौजूद है, ऐसे ऐसे संग्रहालय बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहाँ महाभारत काल तक के जो चीज़ें हैं वो यहाँ मिलती हैं। तो हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं आचार्य जी, वो हमें दिखाएंगे। तो अभी ताला खोला जा रहा है, फिर वो हमें बताएंगे क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ये सिक्के और ये सिक्के डालने के सांचे हैं। ये इन्हीं सांचों में वो सिक्के तैयार हुए हैं। ये देव के सिक्के हैं। और आगे कुछ शासक हुए जैसे कि वेंकटपीस, गणेश घुइस वगैरह हुए, इनके सिक्के भी सांचे यहाँ भिवानी में मिले। तो सिक्के के साथ साथ ये चीजें बड़ी रेयर होती है, सांचे जहाँ सिक्के बनते थे। ये अलग अलग समय के राजाओं के जैसे भारत में होते गए, जैसे कालक्रम के अनुसार जैसे जैसे राजा होते गए वो उनके सिक्के इकट्ठे करते गए, लगाते गए। ये जैसे महाभारत काल में द्रौपदी थी, उसको पांचाली बोलते थे। उस पांचाली खानदान के सिक्के हैं ये। अच्छा, ये आई छतरा बरेली में एक जगह है, वहाँ मिलते हैं। ये इतनी बड़ी वंशावली नहीं मिली और किसी की भी। 35 राजाओं के सिक्के मिलते हैं। अच्छा, हाँ जी। जैसे पृथ्वीराज चौहान आदि हुए, उनके खानदान के चलते सोमेश्वर देव, पृथ्वीराज देव, मोहम्मद गोरी फिर आ गया बाद में। इसके बाद में मोहम्मद गोरी से 2 वर्ष चले मुसलमान के, उनके सिक्के सारे। अच्छा, मुसलमानों के हाँ जी, ये मुस्लिम समय की। हाँ जी। ये आजकल के सिक्के जो व्यक्ति बाहर घूमने जाते हैं, वो अपने अपने देश के जहाँ से ले आते हैं उनके रख लेते हैं सिक्के यहाँ पर। ये जो बाहर तो यूनानी राजा हुए ना, तो ये भारत को जीतने आया, सिकंदर जीतने आया। सिकंदर के जितने सेनापति थे वो यही रह गए। तो 35 के करीब ये सेनापतियों के सिक्के यहाँ मिलते हैं अपने हरियाणा में। और इनके सांचे भी मिले औरंगाबाद, भिवानी में, खोखरा कोट में, हासिम में। तो इनके सिक्के भी बनते थे यहीं पर ही। ये है ये अपने देश के जो राजा लोग, उनके सेनापति वगैरह होते थे, उनकी मिट्टी की मोहरे, इन पर धर्म प्रचार की बातें होती, लिखा के ये दातव्य भोक्तव्य दान देना चाहिए, फिर उसको भोग करो, सच बोलना चाहिए, धर्म करना चाहिए। इस तरह के उपदेश भी राजा की तरफ से देहात में होते थे। ये मिट्टी के मोहरों पर ये 2500 साल पुरानी है। इन पर ब्राह्मी लिपि में लेख है। अच्छा, संस्कृत में। ये 2500 साल क्या? हाँ, ये सिक्के डालने के सांचे हैं और इनमें जो सिक्के बने हुए वो, और ये एक सिक्के का माप है। इनको
जितना सिक्के में तोल होता ना उतना भर कर दांतों का डाल देते थे इन सिक्कों के कपड़े के अंदर। ये इनका तो नाम आपने सुन रखे होंगे, बाबर। हाँ जी, अकबर। ये कितने कितने के सिक्के हैं? ये तोल कौन सा होता है, पैसा बोलते हैं, एक पैसा। अच्छा, तोल के हिसाब से। ये एक बच्चे की तख्ती है, मूर्ति है। बच्चा 3000 साल पढ़ लिख रहा है। ये तख्ती है, ये सवाद है, ये हाथ में लेकिन कलम है, और ये बच्चा सिर पर पगड़ी बांधे, कान में बड़े बड़े कुंडल है, गले में माला, और बच्चा लिख रहा है। अंग्रेज कहता है कि बच्चों यहाँ लिखना नहीं आता था। हमारे 3500 साल पहले बच्चे लिखने लग रहे। वहाँ का ये सारी मूर्तियाँ वही कहेंगे, कोई लाइन दोनों। तो आवश्यकता है इस बात के बच्चे यहाँ के इतिहास की खोज करें, PhD करें कि हरियाणा का क्या जो लुक वो सामने आए। लक्ष्य यही है। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। ये तो जद्दर चेपा जो नवाब था, दुधाना का नवाब, उसके बर्तन थे, तो वो जद्दर में बेच के वहाँ से खरीद के आया। कहाँ से लिए? जद्दर में शहर में बेच गया था। नवाब की खोज की थी सबसे पहले। औरंगजेब ने राखी गढ़ी खेलने की खोज की थी। उस समय का सामान यहाँ एक इकट्ठा रखा हुआ है। की बड़ी हिसाब से सिंधु सभ्यता। ये उनके राखी गढ़ी के, और ये सिंधु घाटी से बचा था। भिवानी के पास एक खंडहर है, ये वहाँ के। ये जापान की है जी। जापान में 2 लिपि चलती हैं, एक तो धार्मिक, एक राष्ट्रीय लिपि। तो धार्मिक लिपि अपने देश की हिंदी से मिलती जुलती है। ये देखो ओम है ना, ओम अपने देश हिंदी में मिलता है। वज्राग्नि दीप्ताय स्वाहा, ये धार्मिक लिपि अपने विष्णु की मूर्ति थी। ये विष्णु की सिर अलग छोड़ रखा है। कहाँ से लेके आए थे आप? मोलबाड़ी गदर के यहाँ ये बिजली का प्लांट है ना, पता होगा, गाड़ी। ये ऊँट के चमड़े से बना हुआ कुप्पा है। इससे ऊँट के चमड़े से तेल डालते थे इसमें। इसमें 250 साल हो सकता है। अगरोहा एक खंडर है, आपको बताओ हिसार में अगरोहा, वहाँ की सामग्री सारी है अगरोहे की। ऐसा जी आवश्यकता इस बात की कि हर गांव का इतिहास लिखा जाए, वहाँ की सामग्री पड़ी हुई है। ये कुएं की देखो एक स्पेशल अलग से ये एक तरफ से चौड़ी, एक तरफ से भीड़ी होती है ना, वो राउंड के लिए गोलाई माजा कुआ, और ये बचीटी होती थी मकानों में। इससे पता लगता है। हाँ जी, अगरोहे के ये मिट्टी के। हरियाणा की सीमा पर राजस्थान की सीमा से लगा हुआ ढाणा, वो 1.5 मील लंबा खंड है। वहाँ तक भी बड़ी हजारों मूर्तियां आई। अच्छा, उसी गांव से लेकर आए हम यहाँ, और भी पड़ी हुआ तो खंडर की खुदाई नहीं हुई, इसलिए। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams which 1965 युद्ध के ये पेंटन टैंक गोला है, ये दोनों जो आप देख रहे हैं हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं। ये सर आचार्य जी हमें जानकारी देंगे। ये 1965 के युद्ध के जो गोला है, ये आपको कैसे प्राप्त हुआ, कहाँ से मिला? 1965 में जो युद्ध हो रहा था, उसकी समाप्ति पर स्वामी ओमान जी के शिष्य बहुत से सैनिक थे वहाँ। हाँ। तो स्वामी जी घूमते रहते थे, उन लोगों ने दिया कि ये हमने पाकिस्तान को युद्ध किया, तो ये हमारे पास मोल पड़े हुए खाली, आप इनको ले जाओ, युद्ध में रख देना। अच्छा, दिया। और ये साथ में क्या? ये नगाड़े, अच्छा, नगाड़े चमड़ा होता था ऊपर हाँ, बजाने की। अच्छा, ठीक। ये खाली खोल है।
खाली खोल है, इनके अंदर बारूद होती थी, बारूद तो निकाल दी, नहीं कि अगले का डर लगता ना, बारूद खाली खाली खोके रख रखे। और ये के तो आगे होता था वो ये गोली जाती, इनमें से ये शहर निकल के जाते थे आगे पैटर्न टैंक को तोड़ने के लिए। अच्छा, ये ऊपर होता था इसमें, और नीचे से जो ठोक लगती है बारूद की, तो ये बाहर निकलती। ठीक ठीक ठीक। बना रखा है, एक ही पेड़ था ये पूरा, लकड़ी से बनाया। लकड़ी का पेड़ का पूरा खोली करके। ये नील करो तो भाट रोहतक के पास गाँव में रोटी कलोई वहाँ से मिले, इनमें नील कर रखते। अच्छा, एक तो सामान पोषित करके मोर बने का। ये आज से लिखे ग्रंथ ऐसे होते थे पहले, आज से लिखते थे तब छपाई का युग नहीं था। ग्रंथ है। हाँ, ग्रंथ संस्कृत। एक बात और बता दूं आपको भी जी। 6 मार्च 2022 को खट्टर साहब ने संग्रहालय की नई बिल्डिंग की नींव रखी थी गुरुकुल की जमीरे वाली रोड पर 20 एकड़। तो 3 एकड़ जमीन हमने कहा ले लो और इसमें नींव सरकार संग्रहालय बना दे। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बस घोषणा कर गए थे वो। कब की थी घोषणा? ये 6 मार्च 2022 को। अच्छा, जगह की घोषणा कर दी थी। अब के बाद हम कई बार मिल लिए, पत्र लिख लिए, कोई जवाब नहीं मिलता। ये बड़ी बात है, जबकि आवश्यकता है ऐसे विशेष संग्रहालय के लिए, क्योंकि जमीन अलॉट करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम हुआ नहीं। और इतना बड़ा संग्रहालय, इतना पुराना संग्रहालय, उसके बावजूद भी ऐसी धरोहर, ऐसी चीज़ों को हम जो लुप्त होती जा रहे हैं उनको सजो के रखा है, उसके बावजूद ये स्थिति है। अच्छा, एक बात ये कारण से कुछ नहीं जाना, केवल पैसे इकट्ठे करने थे। सामग्री अपना पास है, सारी जमीन अपनी है गुरुकुल की। सरकार ने तो केवल मात्र हमारी सहायता के लिए बिल्डिंग तैयार करने सरकार के पास ये कमरे को खोल रखी। ये 427 पेज है, एक पृष्ठ में 2.5 किलो का एक पेज। अच्छा, ये सारे 427 खोल रखे कमरे में छुपा रखे। ये अलावा साहब तक तो नहीं रहेगी। अच्छा, सत्य प्रकार। 250 की थी। 427 पेज, 2.5 किलो का एक। बीच में करवाया। तिल का कितना पुराना हो जी? ये लगभग 250 साल। 250 साल। ये 5 पुस्तक आपने खुद लिखी है सारी? हाँ जी, यहाँ के सामग्री पर, इसी पर संग्रहालय की सामग्री पर। Constellations will find a way through the celestial symphony. We'll sway with every step we leave our cares behind. In this celestial ballroom, love's defined. Caught in the spell of the cosmic night. एक बात और संकेत कर दो आप। तो आपने देखा जिस तरह से संग्रहालय है जो बनाया गया, वाकई में ही एक ऐसा संग्रहालय है कि शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। और विरजानंद जी आचार्य जी हमारे साथ थे, इन्होंने जो बहुत सारी बातें बताई, कुछ चीज़ें और भी सामने आई हैं जो कि नेता लोग आकर बड़े बड़े घोषणा पत्र तो यहाँ दे के गए, घोषणाएं करके गए, लेकिन उनका समाधान नहीं हो पाया। अब जब मुख्यमंत्री थे आपको 50,000 रुपये सम्मान के तौर पर कह लीजिए, वो कंटिन्यू पहले मिलते थे लेकिन अब बंद हो गए। इन्होंने भाजपा का जाते बंद कर दिया। मैंने पूछा क्यों बंद करो, कोई जवाब नहीं दिया।
भाई उसके कारण जान सकते थे भाई, या तो मेरे से ज्यादा कोई बताने वाला आ गया हो, या मुझे भगवान न करे कोई ऐसी अनहोनी हो, तब तो बंद की जा सकती थी, वैसे तो बंद करने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन बंद है अभी। बंद है। तो आपने बात नहीं की? बहुत बार बात की, चिट्ठियां लिखी, कोई जवाब नहीं। तो अब लिखी भी रह गई। ये बहुत सारी समस्याएं यहाँ देखी गई। लेकिन चलिए और चीजें आपको दिखाते हैं गुरुकुल की। आइए। चलो कौन वही तो क्या कहना चाहेंगे गुरुकुल की अगर बात की जाए तो कितना पुराना है, कब स्थापना हुई थी, क्या शिक्षा या विधि दी है? इस गुरुकुल की स्थापना 1916 में पंडित विश्वम्बर दयाल झज्जर निवासी के द्वारा की गई और उसकी आधारशिला स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा रखी गई थी, जिसको चलते हुए इस समय 109 वर्ष हो रहे हैं। 1900 तत्कालीन आचार्य भगवान देव जी जो नरेला में ब्रह्मचर्य आश्रम का संचालन कर रहे थे, उनसे निवेदन किया, उनको यहाँ पर गुरुकुल के आचार्य का दायित्व सौंपा 1942 से। उसके बाद से निरंतर इस गुरुकुल में बहुत से विद्यार्थियों ने शिक्षा पाई, जो कि अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं वर्तमान में। इस गुरुकुल को आचार्य जी विश्व में जो ख्याति प्राप्त हुई है उसके कारण क्या है? एक चीज़ यहाँ देखी गई कि भाई एक बहुत पुराना पुरातत्व संग्रहालय भी यहाँ है, औषधालय भी है, और अभी तक जो आपने बताया शिक्षा की अगर बात की जाए तो किस कक्षा से और कहाँ तक की शिक्षा यहाँ प्राप्त की जा सकती है? देखिए, जो विश्व में ख्याति प्राप्त हुई वो यहाँ के स्नातकों के द्वारा भी अन्य देशों में जाकर के वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार का जो कार्य किया गया उसके कारण से भी, और इसके अलावा जो यहाँ पुरातत्व संग्रहालय है, स्वामी ओमानंद जी महाराज ने बहुत सारे देश के अंदर जहाँ जहाँ ऐसी पुरातात्विक सामग्री उपलब्ध हुई वो वहाँ से इकट्ठा करके रखी हुई है। और राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार का संग्रहालय है उससे भी कहीं अनेक सामग्रियां ऐसी हैं जो वहाँ भी उपलब्ध नहीं होती। महाभारत काल के भी, महाभारत कालीन भी यहाँ अवशेष हथियार आदि रखे हैं। तो इस तरह से प्राचीन बहुत सी सामग्री यहाँ विद्यमान है। विदेशों में कई बार संगोष्ठियाँ हुई तो यहाँ का सामान ले जा करके और वहाँ प्रदर्शन करने के लिए विदेशों में भी इंडिया की तरफ से भेजा गया। तो इस तरह माध्यम से, और आयुर्वेद के क्षेत्र में यहाँ की औषधियाँ बहुत ही अच्छी हैं, प्रभावकारी हैं। कैंसर का भी इलाज यहाँ होता है। स्वामी ओमानंद जी महाराज जब तक जीवित रहे यहाँ तो बहुत बड़े बड़े कैंसर के रोगियों को ठीक किया। उसके बाद भी अब अच्छे वैद्य रखे हुए, उनके द्वारा वो चिकित्सा चलती है निरंतर अन्य हर प्रकार की बीमारी के लिए। और यहाँ का च्यवनप्राश तो विश्व प्रसिद्ध है और अन्य फार्मेसियों का ऐसा च्यवनप्राश नहीं मिलता। अन्य औषधियाँ भी ऐसे बहुत बड़ी गुणकारी हैं, जैसे संजीवनी तेल है, वो कैसा भी जख्म हो, कैसी भी चोट लग जाए, कट जाए, जल जाए, उसमें बहुत उपयोगी है, तुरंत लाभ करता है। तो इस तरह से अनेक औषधियाँ हैं जो बहुत प्रभावकारी है। शिक्षा की बात की, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ 5वीं कक्षा से प्रारंभ करके और आचार्य तक की व्यवस्था है अध्ययन अध्यापन की। और अनेक स्नातक यहाँ, अब तक हजारों स्नातक यहाँ से शिक्षा पा करके निकले हैं। जैसा मैंने पहले बताया, विभिन्न क्षेत्रों में उनका बहुत बड़ा योगदान समाज सेवा के लिए रहा है। वर्तमान में यहाँ 100 के लगभग छात्र अध्ययन कर रहे हैं। तो इस तरह से 6वीं से लेकर 5वीं से लेकर के और आचार्य पर्यंत यहाँ शिक्षा की व्यवस्था। आचार्य पर्यंत तो कितनी शिक्षा होती है गुरुजी? एमए पास, एमए तक जी। अब की बात की जाए गुरुजी और पुराने समय की बात की जाए, गुरुकुल में जो विश्वास पहले हद से ज्यादा होता था, हर कोई गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करना, अब क्या मॉडर्न जमाने में कुछ कमियां आई हैं कि गुरुकुल की तरफ लोग ध्यान नहीं दे रहे या कुछ किनारा करते नजर, ऐसा कुछ दिखाई दिया आपको क्योंकि आप पुराने जानकार हैं? ऐसा तो नहीं है। ऐसा है कि अब प्राय है सभी एक एक संतान या 2 संतान पैदा करते हैं और फिर उनका नजरिया कुछ ऐसा होता है कि आजीविका के लिहाज से ये ऊंचे ऊंचे पदों पर हमारी संतान जाए और हम चिंता मुक्त रहें। इस भावना से वो एक ही छात्र होता है, एक ही संतान होती है, पुत्र होता है या पुत्री होती है या 2 होते हैं, तो उनको अपने सानिध्य में रख करके ही और अन्य ऐसे शिक्षणालयों में जो उनका लक्ष्य होता है वहाँ करवाते हैं। संस्कृत के साथ साथ वेद और दर्शन का तो विशेष अध्ययन होता ही होता है। यहाँ अन्य विषयों का भी पूर्णतः अध्ययन करवाया जाता है। गौशाला भी है। और क्षेत्रफल की बात की जाए, क्षेत्रफल के हिसाब से कि विश्व का या प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुकुल माना जा सकता है? हाँ, जमीन यहाँ 80 एकड़ है वर्तमान में, 400 बीघा। तो लेकिन सेवा की दृष्टि से इसका प्रमुख स्थान है। बिल्कुल। हाँ।
गौशाला भी गुरुकुल के अंदर? हाँ, गौशाला है जिसमें गौओं का रक्षण, संवर्धन, अच्छी उच्च नस्लों की गौएं तैयार की जाती हैं और दूध काफी यहाँ उत्पन्न होता है, जहाँ ब्रह्मचारियों का भी काम चलता है और बाहर के लोग भी यहाँ से दूध ग्रहण करते हैं। बिल्कुल। आचार्य विजयपाल जी, जिन्होंने इतनी बारीकी से आपको बताया, विस्तार से बताया झज्जर गुरुकुल क्यों विश्व में ख्याति प्राप्त है, और सबसे बड़ी विशेषता कि औषधालय जो यहाँ था, बहुत सारे रोगों की दवाइयाँ यहाँ मिलती हैं। विश्व में कैंसर का कहीं इलाज जब नहीं हो पाता था तो बहुत सारे कैंसर के रोगी यहाँ से ठीक हो गए। अभी निरंतर वो चीज़ें जारी है, कैंसर की औषधि यहाँ अभी भी दी जाती है। इसके साथ साथ जो संग्रहालय की बात की, बहुत पुराना संग्रहालय जो, तो ये है झज्जर गुरुकुल, और झज्जर गुरुकुल को 109 वर्ष पूरे हो गए हैं। और बिल्कुल तो बहुत ज़्यादा आस्था और रुचि होती है लोगों की, यहाँ आते हैं और विद्वानों के यहाँ जो उनकी बात होती है, उनके संवाद होते हैं वो सुनते हैं, जो प्रदर्शन यहाँ किए जाते हैं उनको देखते हैं, प्रदर्शनी जो लगाई जाती है, तो वो तमाम चीज़ें झज्जर गुरुकुल से संबंधित है। झज्जर गुरुकुल अपने आप में ही एक ऐसा संस्थान है जहाँ से बहुत सारे विद्वान निकले हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र, जैसे आचार्य जी ने बताया कि अनेक विभागों में, चाहे वो राजनीति की बात की जाए या खेल जगत की बात की जाए या फिर सरकारी उद्योगों पर बात की जाए, तमाम यहाँ से वो चीज़ें निकली हैं। तो ये चीज़ें झज्जर गुरुकुल को दी गई, झज्जर गुरुकुल की तरफ से दी गई हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको झज्जर गुरुकुल के बारे में जानकारी समझ में आएगी, और आप एक बार जब यहाँ आके देखेंगे, यहाँ की शांति, यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल अपने आप में ही लुभावना है। आप अपने बच्चे को वाकई में इस संस्कृति की, जो हमारा देश एक सनातन धर्म की तरफ अग्रसर है और लगातार हमारा देश शांति के प्रति और सनातन के प्रति जो एक आस्था और विश्वास होता है, वो यहाँ इस जमीन से आपको जरूर दिखाई देगी।